घायल न કર્યો હોય, જેને ઘાયલ ના કર્યો હોય એ હોય તો કોઈ કહી દે કે હા હું છું, તો એને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ હું કરવા તૈયાર છું. ઓમાંથી બચવા માટે ભગવાનની શરણમાં એમનો સાનિધ્ય અને એમનો સ્મરણ બસ એ જ ઉવારવા વાળા છે. એટલા માટે એમની કથા છે આ સાહેબ, એટલા માટે કથા છે. કોઈ કે ઓહો પાપ કરો અને મુક્ત થઈ જાય, હા થઈ જાય. કે પાપ થયા અને પછી મુક્ત થાય કે ભાઈ થાય કે કાલે શું થયું તો પ્રસંગ આવ્યો, સમજણ પડી કે ના પડી કોઈને? કે પાપ તો થયા ભાઈ કે ગંગા જલમાંથી લઈને દારૂ મદરા બનાવી, મદરા તો કોઈ પીવે નહીં, એ પાપી થઈ ગયું. વાત સાચી કે નહીં? અને મદરાના સંત તો સજ્જન મનુષ્ય તો એને ગ્રહણ કરે નહીં ને, એ પાપ. અને બે પાપ જો મદરા જો गंगा जल में પછી गंगा जी में शरीर ये समर्पित कर दो, गंगा जल થયો કે નહીં? जैसे जीव जीव છે, સમજી ગયા? અને એ ઈશ્વર માં ભળી જાય, ઈશ્વર જ થઈ જાય ને, ઈશ્વરનો જ અંશ છે ને જીવ. પણ એમને એમ ના થાય, એમને શરણમાં આવવું પડે સાહેબ, શરણમાં આવવું પડે ત્યારે એ જીવ અને ઈશ્વરનો રૂપ થાય. बड़े भाग्य बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य આપણે વિચાર કરીએ છીએ કે એમને માણસ બની ગયા, માણસ જન્મ મળી ગયો. આ 84 માંથી મનુષ્યનો જન્મ પ્રભુ કેટલી કૃપા, કેટલી દયા અને કેટલા જન્મનો કંઈક પુણ્ય થતો હોય ને ત્યારે આ માણસનો જન્મ મળે છે. આ દેવતાઓ સુરત દુર્લભ છે, દેવતાઓને મળે ખરો માણસનો જન્મ માંગે તો? દેવતાઓને બી ના મળે, દેવતાઓને બી જન્મ આ દુર્લભ છે મનુષ્યનો. પછી દેવતાની પૂજા તો થાય પણ જો માણસનો જન્મ દેહ માંગે તો એને પ્રાપ્ત ના થાય. પણ એ માણસનો દેહ શું કહેવાય? કહ્યું છે કે સાધન ધામ મુझ कर द्वारा, साधन धाम साधन धाम मुझ कर
પરમાત્મા હમણાંની કૃપા સ્વયં તો શંભુ એ લીલા એમની જ છે. આદેશ બ્રહ્માજીને થાય, કોનો થાય? ઓમનો થાય. શંભુ તમને જેમ મનમાં લાગે ને એ રીતે રચના કરો, पर कबहू को करुणा करे नर देही. तो हाँ मैं व्यासपीठ से आप सभी को, उपाजी श्री को भी वंदन, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. हिम्मतनगर से पधारे हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त भी करता हूँ. तो साधन धाम, साधन आ मानव देह થી જ બની શકે. આ સાધન છે મનુષ્ય શરીર. એટલે કે શેનો સાધન છે? કે મોક્ષના દ્વાર પર લઈ જવા માટે આ સાધન છે. સાધન નો ભંડાર કેવલ ફક્ત ને ફક્ત આ માનવ દેહ છે. કે શેના માટે? કે મોક્ષના દ્વારે લઈ જવા માટે આ મનુષ્ય શરીર છે. અને પાઈને જે પરલોક સમારા માનવ દેહ તો મળી, પર પરલોક ના સુધાર્યો રસ્તો આ ધામ મળ્યો હોય સુંદર, અને રસ્તો જો ક્લિયર ના કરો તો પછી કેવું થાય? એટલે કે આગળ કહ્યું કે સો પરત્ર દુઃખ પાવઈ और सिर धुन धुन पछताए. જ્યારે દેહનો ત્યાગ થાય ને, આ દેહ છૂટે ને એટલે આ પડી ગયું દેહ. જીવ તો ગયું પણ દેહ રહી ગયું ને. હવે દેહ રહી ગયું, જીવ તો નિત્ય છે, અવિનાશી છે, એ તો મરવાનું નથી. અને દેહ જ્યારે દેહ પડ્યું તો સો પરત્ર दुख पावई और फिर सिर धुन धुने पछताए. છૂટ્યો માનવ દેહ તાને પછી આ શરત મેં છે કે અલે મેં હું કર્યું. હવે તો જવાનું દેડકામાં, કૂતરામાં, સાપમાં, ખિચકોલીમાં, એ તો કોઈ નક્કી નહીં ના. જ્યારે આ દેહ છૂટી જાય છે ત્યારે પછી આ પછતાવો આવે છે કે સો પરત દુઃખ પાવઈ और सिर धुन धुन पछताए. और પછી શું કરે કે કાલઈ કર્મઈ ઈશ્વરઈ અને મિથ્યા દોષ લગાય કે સમય મારો શું કરું એવો હતો અને મારે કે કર્મ અને પછી ઈશ્વરની જે બી ઈચ્છા. એટલે ખોટું દોષ લગાવે છે માનવ, ખોટું દોષ ઓમો લખી છે. હું નહીં કહેતો, હું એક શબ્દ મારે પ્રમાણિકતા હશે ઓમો, મારે શબ્દ પાસે કોઈ નથી મારા. ઈશ્વરને ખાલી ખોટો દોષ કે પ્રભુ લીલા તમારી જશે, પણ એ તો જોતો નહીં કે આપણે ગરમ માસ મેં નરકમાંથી આયા અને કેટલા વાયદા કર્યા. હે પ્રભુ આ નરકમાંથી મને મુક્ત કર અને હું તારો ભજન કરીશ. કયો ભજન? ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ
भगवान कहते हैं, अब प्रसंग है ना, भगवान राम अयोध्या में जયારે आया लंका में અને રામ રાજ થઈ ગયું ત્યારે અયોધ્યા વાસીઓને આ પ્રબોધન કરી રહ્યા છે એમને કે ભાઈ તમે એમ માનતા હો કે આ માનવ જે એમને મળી જાય એમને નહીં મળતું, આ ભગવાનના બ્રહ્મના મળેલું સત્ય એ અયોધ્યાવાસીઓને સંબોધન કરી રહ્યા છે। यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन आ शरीर नो फल तमे એટલું જ માનો છો કે વિષય ભોગમાં જ રાખો કે આ મારો અને વિષયા શક્તિ, તો यही तन कर फल विषय न भाई, અને સ્વર્ગ स्वलप અને અંત દુઃખદાયી। કોઈ અહીંથી નીકળીને કદાચ અને સ્વર્ગ में જતો બી રહે તો સ્વર્ગનો સુખ બી અલ્પ થોડો છે, પેલામાં તો જવું જ પડશે। क्यों नरक? जी हाँ, કેમ કે તમારા આપણા જે કંઈક ગણેલા પુણ્ય હોય ને, ભગવાન નો એવું છે કે ભાઈ જે કોઈ સત્કર્મ કર્યા હોય એનો ફળ પેલે આપવામાં આવે છે, એનો પેલે ભાઈ કે ચાલ પેલે ભાઈ કે આમાં સુખ ભોગી લે સ્વર્ગ, અને પછી તો નર તન પાય, ભાઈ મનુષ્યનું શરીર મળ્યું અને विषय मन देही मानव देह मल्यु અને આ વિષયો में જે મન રાખે છે કેમ કે આ માનવ જ કરી શકે એવું કેમ કહ્યું છે? મનુષ્ય 84 લાખ જોનીઓમાંથી કયા જીવી? પણ ભાઈ કોઈ જીવ જોઈ લ્યો કે આપણે ફર્સ્ટ ક્લાસ મકાન બનાવીએ છે, બંગલા બનાવીએ, पर तमे जोयुं हशे चकलीनो माळियो एवो बनावे छे के आपणे मननी कल्पनाथी बहार होय के नीचेथी जाय अंदर रे, पर एक एक सड़ी एवी फिरोवे छे के आ तो दरेक રહેવાનો બનાવે છે, जीविका बधानी चलावे छे। तो जे निंद्रा भय मैथुन अने आज कह्युं छे ने पांच एमो बधा ए ज करी रह्या छे। અહીંયા પ્રસંગ એવો છે, પણ ઓમાંથી એટલે કહ્યું ભગવાને કે ભાઈ મનુષ્યનો શરીર મળ્યું અને આ શરીર મળી જાય અને વિષયોમાં જ રચ્યો પચેલો રહે તો 84 में જેટલા જીવ છે ને માનવમાં કશું ભેદ રહેતો નથી। અને આ શરીર ફક્ત એટલામાંથી આ જવાનું સાધન આ સીડી છે માનવ દેહ। क्यों? हाँ के भवबंधन फेरो छूटी जाता। तो जो नरतन पाए विषय मन देही और सुधा पलट, सुधा केवाय अमृत, 60 विष लेही अरे अभागे हैं ऐसे। आ सवाल अजी भगवाने कई कई से કે અમૃત પાત્રમાંથી અમૃત ને અને ઊંધો કરી અને વિષ માંગી રહ્યા છે, વિષ અને પીવા માટે વિષ માંગી રહ્યા છે। એ 84 નો જે છે ને ખેલ આ માનવ દેહનો છે। તો હવે આ
વિષય પર બહુ ચર્ચા નહીં, આ સત્સંગનો શ્રોતાઓ પર સંખ્યા વૃદ્ધિ એટલા માટે સત્સંગ માધ્યમ વૃદ્ધિ ઓમાં કથાના પ્રકાર એક નહીં, હજાર નહીં, કરોડ પ્રકાર સસાય. जितनी कथा सांभळो એટલો प्रकार. आइए तो चलते हैं. अमो लागेला रहिए तो अब 4 कलाक क्यों गया. 9 દિવસની અંદર કથાનો કોઈ કહે કે કથા પૂરી થઈ ગઈ, અને કથા તો પૂરી ફરી કહું છું કે ગમે એટલા કરોડો જન્મ લઈ લઈએ કથા પૂરી કદાપી ના થાય. જે સમય આ સત્સંગ છે, કેમ કે अभी तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करवानी है ना, तो आइए साथ साथ गुरु पार्थेश्वर भगवान की जय. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. महादेव की जय. આ કથાનું સ્થાન તો જો મહાદેવનો સાનિધ્ય અને બડનો ઝાડ ઉપર આપણે બડનો ઝાડ છે સાહેબ, એવો સ્થાન સૌભાગ્ય. અને સામે બેલીપત્ર, આ બેલીપત્રના વૃક્ષના નીચે બેઠા છે અને કથા સાંભળી રહ્યા હતા. शिव ज्योतिर्लिंग की कथा. कल केदारेश्वर भगवान के प्रादुर्भाव की हमने कथा कही. आज भीम शंकर की जो ज्योतिर्लिंग है, भीमा शंकर. जी हाँ, तो आइए बोलो पार्थेश्वर भगवान की जय. प्रभु आप आइयो और आपके बल पे ये कथा कर रही है, मुझे तो मालूम ही नहीं है. तो सूत जी कहने लगे और सौनक ऋषि पूछ रहे कि प्रभु आप केदारनाथ की जो कथा कही, अब आगे भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा हमें सुनाओ. सूत जी कहने लगे. उधर नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, तो हे मुनि श्रेष्ठ, नारद जी कह रहे हैं. सौनक ऋषि ने भी सारण में बैठकर कथा सुन रहे हैं. सूत जी कहने लगे कि इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदार और शंभु की जो मैंने आज पूजा कही है, इनकी जो पूजा करनी चाहिए और इसके लाभ अनेक कहे. जो मन क्रम वचन से इनके दर्शन, केदारेश्वर के दर्शन करता है तो फिर दोबारा पृथ्वी पर उसे नहीं आना पड़ता और मोक्ष की और स्वर्ग की प्राप्ति होती है. कितना कितना माँ के जन्म से, माँ की कोख से जन्म नहीं लेना पड़ता गर्भ से. तो आगे जब पूछा उन्होंने
कि अब मैं भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का और ये महात्म अब कहूंगा। सुनिए कि कामरूप देश में और लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में जब अवतीर्ण हुए तो उन सब का स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ। अरे पूर्व काल लेकर इसमें भी कल्प भेद है, बताइए। यहां तक बात सूत जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि पूर्व काल की बात है और पृथ्वी पर ऐसा राक्षस हुआ बलवान, उसका नाम था भीम। इतना बलवान था कि वो सर्वदा धर्म को विध्वंस ही करता था। और उसकी माता का नाम, इतना बलवान माता का नाम भी बताते हैं कि पूरे उस पर इतना उस बलवान ताकतवर था कि हाहाकार मचा रखा उसने, लेकिन उसे अपने पिता का नाम मालूम नहीं था, नहीं जानता था। तो एक दिन अपनी माँ से वहां पूछने लगा कि हे माँ, मेरे पिता का क्या नाम है? आज तक तुमने बताया नहीं। जब माँ ने बताया कि बेटा तुम्हारे पिता का नाम रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण महाबलवान, वो तुम्हारे पिता है, वो तुम्हारे पिता थे। मैंने फिर कहा तुम पिता मेरे कैसे हुए? कि हे पुत्र, एक बार घूमते हुए यहाँ आया और उसकी माँ का नाम था करकटी। तो करकटी कहने लगी कि तुम्हारे पिता हे पुत्र कुंभकर्ण है। अब कुंभकर्ण का नाम सुनकर आश्चर्य में पड़ गए भीम राक्षस। और फिर उसने सब कथा सुनाई कि कुंभकर्ण यहाँ एक बार घूमने के लिए आए और जब मेरे विवाह हुआ और पति समाप्त हो गए, फिर मैं वहां ससुराल में कोई नहीं रहा, तो उसने करकटी ने अपने माँ बाप का नाम बताया। मैं यहाँ आकर रहने लगी और माँ बाप का जब देहांत हो गया तो हे पुत्र, मैं भी अकेली हो गई। तो मैं यहाँ जंगल में रह रही थी और जंगल में जब यहाँ अकेली रहती थी तो कुंभकर्ण यहाँ वो आए तुम्हारे पिता बेटा, और यहाँ आकर उन्होंने मुझे यहाँ देखा और उन्होंने यानी बलात् मेरे साथ जो किया और समागम किया, फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए कुछ समय के बाद। और लंका जब चले गए तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ कुंभकर्ण के जाने के बाद। और तुम भी पिता के समान ही बलवान हो पुत्र, जितना कुंभकर्ण बहुत बलवान थे, और तुम भी पिता के समान ही बलवान हो और पराक्रमी। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। कालक्षेप का मतलब काल की क्षति, यानी काल समय समाप्त, समय बिताना, समय व्यतीत कर रही हूँ यहाँ तुम्हारे सहारे से हे पुत्र। सूत जी कहने लगे आगे कि ब्राह्मणों, करकटी की ये बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम और एकदम क्रोधित हो गया, कोपित हो गया एक साथ कि अब मैं कोपित क्यों हुआ कि माँ तुमने ये कहा कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण थे, अर्थात अब नहीं है,
कि हे पुत्र अब नहीं है। रावण और कुंभकर्ण उन सबको भगवान राम ने मार डाला। जब सब वृत्तांत करकटी ने सुनाया तो उसे बड़ा क्रोध हुआ कि अब मैं श्री हरि को यानी विष्णु को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना पराक्रमी था वो राक्षस। उसने पूरी जिसके सामने युद्ध किया उसको जीत लिया। उसने देवता नहीं छोड़े। अरे जहां तक कि विष्णु जी को भी एक बंधक बना लिया और पूरे संपूर्ण पृथ्वी पे उसने साम्राज्य जमा दिया। यहां तक इसमें वर्णन है। ऐसा पराक्रमी बलवान था वो। लेकिन फिर उसके मन में आया कि मैं हरि को जीतूंगा कैसे। ऐसा निश्चय करके और भीम महान तप करने के लिए जब चला गया तो उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्ष तक तपस्या करी पहले। और तपस्या करके जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। जो तुम चाहते हो मांगो, वही तुम्हें वरदान प्राप्त करता हूं। देवताओं का यही रहा। जिसने तपस्या करी और उनको, लेकिन 1000 वर्ष तक उस महाभीम ने तपस्या की। ब्रह्मा जी के कहने पर भीम बोला कि हे देवेश्वर, हे कमलासन, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल प्रदान कीजिए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए ऐसी कि पूरी सृष्टि पर किसी की मेरे समान बल में और तुलना ना हो सके, अर्थात मेरे समान कोई हो ही नहीं। ये मैं चाहता हूं आपसे। अब ब्रह्मा जी ने राक्षस को वरदान भी दे दिया कि ऐसा ही हो। फिर तो उसने राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभीष्ट बल दे करके अपने धाम को ब्रह्मलोक चले गए। अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ अब तुम मेरा बल देखो और मैं इंद्र आदि देवताओं तथा सब इन सब की सहायता करने वाले श्री हरि महान विष्णु को भी श्री हरि का भी महान संहार कर डालूंगा, अर्थात विष्णु को भी मार डालूंगा। मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा, क्योंकि हे मां तुम्हारे पर जो अत्याचार हुआ है। और करकटी ने सब बताई बात कि मेरे माता पिता का विराट के साथ युद्ध हुआ था, उन्होंने पिता को मार डाला। वो सब कैसे कैसे मरे सबका वर्णन उसने किया था। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से बाहर निकाल किया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया और फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। उस महाबलवान भीम ने राक्षस ने जब पृथ्वी पे ऐसा हाहाकार मच गया तो पृथ्वी तो व्याकुल होगी कि नहीं। तो सबसे पहले कामरूप देश के और राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। और वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर और महाराज सुदक्षिण को भी परास्त कर दिया और सब
सामग्रियों सहित उनका राज्य भी सर्वस्व अपने अधिकार में ले लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत में बंद कर दिया। जब एकांत में बंद कर दिया तो क्या करें वो? उन्होंने वही मिट्टी से और ये पार्थेश्वर भगवान की शिवलिंग का निर्माण किया और बंधक बने हुए वही बस वहीं से वो उनको मनाने लगे। भगवान को बंधक बने हुए स्थिति में बारंबार गंगा जी की स्तुति करते और मानसिकता से गंगा जी भी स्तुति करके उनके ऊपर जल अर्पित करते। वहां कहा गंगा जी, लेकिन मानसिक जैसे हम आपको 2 दिन से मानसिक पूजा और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में लेके चल रहे हैं, अर्थात आप यही समझिए अभी कि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा वाली गाड़ी में बैठे हुए चल रहे हैं। वही भाव वहां और उन्होंने बंधक बने हुए राजा ने और मानसिकता से माँ गंगा की स्तुति करके और उन पर जल अर्पण करना शुरू किया। पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान का शिव का ध्यान करके और प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र वही कौन सा? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश ही नहीं मिलता था, कुछ करे क्या? बंधक। जब उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा और दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती तो वे दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर्ग के अभिमान से मोहित होकर यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा कि तुम लोग सब कुछ मुझे ही दे दो, जो कुछ भी है। महेशियों, दुरात्मा और राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले और उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों और शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण उसका स्वयं ही उपभोग करने लगा। उपभोग। तब सब देवता तथा ऋषि और अत्यंत पीड़ित हो गए। पीड़ित होकर महाकोशी के तट पर गए और भगवान शंभु की आराधना स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आप ही तो हो अब इस संकट में उबारने वाले। अब कोई नहीं है, क्योंकि श्री हरि यानी विष्णु जी को भी बंधक जब बना लिया, विनती करने लगे, स्तवन करने लगे भगवान का। उनके ऊपर इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो और देवताओं से कहने लगे, हे देवगण, महर्षियों, मैं प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? भगवान शंभु प्रकट होकर कहने लगे, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? क्या चाहते हो? बोलो, क्या इच्छा है? सभी देवता कहने लगे, हे देवों के देव महादेव, हे देवेश्वर, देवेश्वर यानी देवों के भी ईश्वर आप अंतर्यामी हैं, आकर सबके मन की सारी बातें जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है।
हे प्रभु, महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न और कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान प्राप्त करने के कारण शक्तिशाली है बहुत, देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए प्रभु, और हम पर कृपा कीजिए। अब विलंब न कीजिए प्रभु, अब सहन नहीं होता। देवताओं की विनती सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, हे देवताओं, अब तुम ऐसा करो, कामरूप देश के राजा जो सुदक्षिण मेरे वो सुदक्षिण जो है वही श्रेष्ठ भक्त हैं, और तुम सब उनके पास जाओ और उनसे मेरा एक संदेशा कह दो जाकर, फिर तुम्हारा सारा काल शीघ्र पूरा हो जाएगा, शीघ्र ही। जो बंधक बने हुए महाराज, उनका नाम सुदक्षिण, उनसे कहना कि कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण, प्रभु तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। और दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। अथवा शंभु भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा जाकर उनको संदेश दो मेरा, अर्थात उनको सांत्वना भी मिलेगी, संकट में है। सोनक ऋषि कथा सुन रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं, आगे कहने लगे सूत जी कि हे ब्राह्मणों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक और वहां जाकर महाराज से शंभु की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, और वे सबके सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोक हित की कामना से और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उनके निकट गए और गुप्त रूप से वही ठहर गए भोलेनाथ, जहां महाराज तपस्या कर रहे थे। और इसी समय काम रूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने आकर वो भीम राक्षस जब आया तो महाराज को बहुत सताने लगा, और दूसरा कि तलवार लेकर ऐसा हमला किया कि जो पार्थिव भगवान की जो सेवा कर रहे थे महाराज, और वो पार्थिव शिवलिंग को ही काट दिया उसने। और जब पार्थिव शिवलिंग को तलवार से जब काटा, एक साथ भोलेनाथ प्रकट हो गए, और प्रकट होके उसकी तलवार के पार्थिव शिवलिंग के पास तक तलवार आने ही वाली थी कि तब तक टुकड़े टुकड़े हो गए तलवार के। और जब तलवार हाथ से छूटी उसके, तो उसे देखकर उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है। जैसे तलवार छूटी तो वो जो भीम राक्षस था कि इसी राजा ने मेरा कुछ किया है। तलवार के ये कोई जादू, कुछ मंत्र, कुछ है इसके पास। अर्थात अतः सब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूं। फिर उसने योजन रचना एक रची कि इसके पास कोई सिद्धि है, और मेरी तलवार टूट गई, तलवार शिवलिंग तक नहीं गई। अब मैं पहले राजा को ही नष्ट करूंगा। और वो भीम राक्षस पूरी सामग्री जुटाने के लिए गया, और सामग्री जुटाकर महाराज के लिए राजा को पहले अच्छी तरह से डांटा, उल्टा सीधा कहा,
और जब मारने लगा तो भगवान सहन नहीं कर सके। राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप कर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा हूँ। तब राक्षस भीम ने महान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार पूर्वक दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव सिंह पर भी तलवार जैसे चलाई। ऐसा कहकर भगवान शिव ने और भगवान वहां जब प्रकट हुए तो कहकर पिनाक से और उसकी तलवार भी तोड़ी है। और राक्षस ने फिर उसने अपना त्रिशूल चलाया और त्रिशूल शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध भी हुआ जिससे सारा जगत क्षुब्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना करी। नारद कहने लगे, भगवान भोलेनाथ से, हे नाथ, हे भोलेनाथ, आप लोगों को, सृष्टि को ब्रह्म में डालने वाले, क्या कह रहे नारद जी भगवान से, हे महेश्वर, अरे मेरे नाथ आप क्षमा करें, क्षमा करें, तिनके को काटने के लिए आप। नारद जी क्या कह रहे हैं, आप तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है। अर्थात इस भीम बेचारा राक्षस और इसको तिनका बता रहे नारद जी, इसके लिए तिनके के लिए कुल्हाड़ा चलाने की, कुल्हाड़ा तो किसी लकड़ा पर चलाया जाता है। नारद जी कहने लगे भोलेनाथ से, कुल्हाड़ा चलाने की आवश्यकता क्या है, शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए प्रभु। नारद जी ने कहा और नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से और उस भीम राक्षस का वहीं उसे भस्म कर दिया। हुंकार, ये भोलेनाथ शंभु। वो राक्षस कौन था कि जिसने श्री हरि विष्णु जी को भी बंधक बना लिया, पूरी पृथ्वी को बस में कर लिया। ये है परम पिता परमेश्वर। बोलो पार्थेश्वर भगवान की जय। और उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला, जितने भी राक्षस थे। भगवान भोलेनाथ अपनी हुंकार के माध्यम से सबको नष्ट कर डाला। तदनंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनियों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। और उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, हे प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास यही कीजिए। यह देश निंदित माना गया है और यहाँ आने वाले लोगों को प्रायः दुख ही प्राप्त होता है। हे भोलेनाथ, आप यहीं बस रुक जाइए, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, उनके ऐसा इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हित की, वो लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। और बोलो भीमेश्वर भगवान की जय। ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान का प्रादुर्भाव इस प्रकार हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Bye.
की जय, पार्थेश्वर भगवान की जय, देविया महादेव की जय, द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। आइए थोड़ी देर के 2 मिनट के लिए कल की तरह जिस किसी को भाव ये अच्छा लगता हो तो नेत्र बंद करके पार्थेश्वर भगवान का ध्यान करके, और आप सब सामग्री लेके बैठे हैं और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अभी आप मानसिकता से करके वापस इधर ही ला देंगे आपको। तो आप ये जो यात्रा करना चाहते हैं हाथ जोड़कर सामग्री लेके सब पूजा की बैठे हुए हैं और ध्यान रखेंगे भगवान इन पार्थेश्वर भगवान का, और आपको यात्रा कराते हैं। जैसे 2 दिन मानसिक पूजन हुआ भगवान का, इसी प्रकार आज यात्रा करा रहे हैं 5 मिनट। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। ध्यान रखेंगे पार्थेश्वर भगवान का, जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश काठियावाड़ में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, और चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की मैं शरण में जाता हूँ और उनको वंदन साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और जो ऊंचाई के आदर्श भूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैलेश्वर शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान है, उन्हें एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी यानी उज्जैन में जो अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए और नमस्कार करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओंकारेश्वर को मैं स्तवन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनकी चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सतंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से भूषित हो रहे, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण में जाता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ, उन्हें दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो महागिरी हिमालय के पास केदारेश्वर तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वर द्वारा पूजित होते हैं, तथा देवता असुर यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन्हें कल्याणकारक भगवान केदारेश्वर का मैं स्तमन करता हूँ, उनको बार बार नमस्कार करता हूँ और दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सह पर्वत के विमल शिखर पर वास जो करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाते हैं, पातक संपूर्ण पाप जो नष्ट हो जाते हैं, उन त्र्यंबकेश्वर में का मैं स्तवन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो स्वयं आनंद कंद है, आनंद पूर्वक आनंद वन काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की मैं शरण में जाता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन्हें घृष्णेश्वर नामक
मैं भगवान शिव की शरण में मैं जाता हूँ, बारंबार नमस्कार प्रणाम दंडवत प्रणाम करता हूँ। यदि मनुष्य कहे गए इन द्वादश ज्योतिर्मय शिवलिंग के स्तोत्र का भक्ति पूर्वक जो पाठ करते हैं तो इनके दर्शन से होने वाला लाभ और प्राप्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्थेश्वर भगवान की जय। ये आपकी परिक्रमा और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप करके फिर वापस यहीं, ऐसा लगा के नहीं लगाया, ऐसा तो बोल दिया करो। आप विद्वान हैं। ओम नमः शिवाय, 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 पार्थेश्वर भगवान की जय। देविया महादेव की जय। देवों के देव महादेव इनकी शरण में प्रणाम बार बार है। हम पहले कथा का महात्म सत्संग के माध्यम से भगवान का प्रादुर्भाव, अब वहां कल की कथा पर आते हैं। मां पार्वती का जन्म और उनकी तपस्या के लिए गए हैं। तो जैसे ये 3 भूमिका से हमारी 9 दिवसीय कथा चल रही है, अब अपनी तीसरी कथा पर प्रसंग पर आते हैं। एक भजन छोटा सा भोलेनाथ का तैयार है, सुनाइए। और कहा भोले बिगड़ता क्या मेरी क्या
वो बोले हजार